Hello everyone. Hi, I'm Prashant Bharti, your teacher for typesetting technique. This is quite unique way of teaching, right? And I would expect sincerity from your side. मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सिंसियर रहें, थोड़ा continuity हम देखेंगे continuity बने. Although it's quite tough because as you know because of pandemic and all, and online classes is quite different, I would say. And I will take classes on YouTube as well as on Google Meet on alternative basis. Before start this session, I would like to mention some important points, or you can say I am giving you some instruction. Okay. Uh, First of all, please give a feedback which you will find in the description box or in Google Classroom. Everyone has to join Google Classroom so I can mark their attendance. Okay, your attendance will be on Google Classroom as of now. Maybe sooner or later I will write down it on attendance sheet, printed attendance sheet. But right of now, I will take on Google Classroom. First is give a feedback form. Second is you have to follow Google Classroom so I can mark your attendance over there. And third is you can write your doubts over there. Okay, so after that I get to know that whatever is your difficulties or doubts, so I can either solve it on two-way communication, that is on Google Meet, either on Google Meet or in YouTube on next session, right? So instead of giving all this doubts on WhatsApp, I would prefer to write down on feedback form. It's okay, you can write in Hindi, English or whatever language, there's no issue. जैसे भी आपको सुटेबल लगता है तो वैसे आप लिख दो, बट रिमेंबर दैट कि आपको फीडबैक फॉर्म फिल करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी सेशन. One more thing, stop this video right off now and bring your pen, pencil and paper and note down all the instruction, all the topic which we are covering today, because after this session you have to give a feedback form where I will ask some questions also. So this way we will have a two-way communication. At least I just want to know that कि आपने कितना सीखा आज के सेशन से. The best part of this online teaching is we can replay our old video, we can rewatch the old video, and we can take a screenshot. But the worst part of this session is like हमें पता नहीं चलता कि बच्चे को क्या समझ में आ रहा है. तो उसके लिए ऐसा है कि अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो उसका एक ही वे है दैट यू हैव टू फिल अ फीडबैक फॉर्म, गिव अ टाइम टू टाइम answer of my questions. And most important, I would love to interact with you, so sooner or later we will conduct a conference session. Okay, so I can see your face. Got it? आज नहीं तो कल हम कभी एक बार सेशन जरूर करेंगे, so that at least I can see your face, because पता चले, especially for my evening student. I am a proctor of evening student, so I would love to see those 40 students face, so that आगे फ्यूचर में at least we connected for at least 1 year, right? तो थोड़ा बहुत पता हो. Sorry, I forgot one more thing, that I would be your training instructor, or you can say I will send you to company for training after second year. So that's why again it is very much important for me to see your face and to see your sincerity. So be kind with me, be polite with me. There is nothing I am forcing you. कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें डंडा मार के या लेट मार के आपको बोलूँ कि बी सिंसियर, बट आई एक्सपेक्ट sincerity from you. That's all what I want. And I know it is very difficult to attend online classes. That's why I'm giving you a YouTube video instead of directly giving a Google Meet, because somewhere I've heard that सुबह 8 बजे क्लास होती है तो you are not able to attend that class because of some family issues and all. But at least for this YouTube session I expect better result. Okay, and before that I'm giving you my brief
I'm a lecturer of Pusa Institute since 2012 October. Okay, I'm a alumni of Pusa Institute. Alumni means मैं इस इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी भी रह चुका, स्टूडेंट भी रह चुका, आपकी तरह मैंने भी डिप्लोमा यहीं से किया है. ओके, उसके अलावा आई हैव डन एमटेक, बीटेक, पीजी डिप्लोमा इन बुक पब्लिकेशन. एक्सपीरियंस है टीचिंग का, प्लस एक्सपीरियंस भी है. उसके अलावा मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट इज लाइक वेयर आई होल्ड द कमांड, ग्रेवियर प्रिंटिंग, बुक पब्लिकेशन, टाइप सेटिंग, पैकेजिंग टेक्निक. मैं शायद से अगले सेमेस्टर में आपको पैकेजिंग टेक्निक पढ़ाऊंगा. इसके अलावा बुक पब्लिकेशन, शायद से कभी इंटरेक्शन हुआ तो हम बुक पब्लिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे. हमारा टाइप सेटिंग तो चल ही रहा है. ग्रेवियर प्रिंटिंग हमारा आपके में नहीं आता, इनकेस अगर आएगा कभी तो वो हम देख लेंगे. टुडे आवर एजेंडा इज लाइक, आज का हमारा टॉपिक क्या है, मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर हो सकेगा, लेकिन मुझे डाउट है ये कवर नहीं होगा. तो अभी हम ये 3 देख लेंगे. ओके, तो आज का हमारा एजेंडा है टाइपोग्राफिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ओके, टाइपोग्राफिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एंग्लो अमेरिकन पॉइंट और डी डॉट पॉइंट सिस्टम. इसके बाद हाउस स्टाइल एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉपी. प्रिंटर टाइप्स. ओके, प्रिंटर टाइप्स used by a printer for composing and printing. This is called printer types. How it is looks like, it's look like this. We have seen this in semester 1 in letterpress printing, where this is our set size, this is our body size. Okay, this is our height from there to, up to this side, which is fixed. Okay, and this is our image area. This is our image area and ink is applied over there, and then it is transferred to the paper through a pressure. Okay, ink यहाँ पे अप्लाई होती है. उसके बाद इंक को हम इस टाइप को अगेंस्ट द पेपर हम फोर्स करते हैं, जिससे हमारा जो इसमें इंक लगी होती है वो उस पर ट्रांसफर हो जाती है. राइट, सर्टेन हाइट होती है, आपस में कंपोज करते हैं. बाय असेंबलिंग टाइप्स इट मेड ए वर्ड विच मेक्स अ सेंटेंस, देन पैराग्राफ, देन पूरा एक पेज बनाते हैं. तो इनके कलेक्शन से ही बनता है विथ अ डिफरेंट साइज. ओके, तो इट इज़ मेड अप ऑफ लेड, टिन एंड एंटीमनी. इन अलॉयज से बनता है. लेड सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, टिन, एंटीमनी, ये हमने पढ़ा था. द सरफेस ऑन द टाइप इज स्लाइटली इन रिलीव्स. ओके, ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, सो दैट व्हेन द टाइप इज इंक्ड सो प्रेस्ड अगेंस्ट द पेपर ओनली द रेज्ड प्रिंटिंग सरफेस. जो उभरा हुआ पेपर है, जब अगेंस्ट द पेपर हम उस पर प्रेस करते हैं तो उभरा हुआ साइड है, वहाँ पे इंक लगती है एंड ट्रांसफर देयर डिज़ाइन इनटू द पेपर. उसके बाद उसका जो डिज़ाइन है, जो अल्फ़ाबेट्स है या कुछ वट एवर इट इज़, लाइन, ब्लॉक, एनीथिंग दैट ट्रांसफर इनटू द सबस्ट्रेट और पेपर. दे आर मेड ऑफ 3: बॉडी, विड्थ एंड हाइट. ओके, बॉडी से पहले थोड़ा सा ये बता देता हूँ दैट इट इज़ ए 3 डायमेंशन. मेटल इज अलॉय यूज. ओके, ये रिलीफ प्रिंटिंग का भी हमने बता दिया. और इसके अलावा एक बार हम इसको लुक में दिखा देते हैं क्लीन करके. ओके, इसमें जो बॉडी होता है, पहला पार्ट होता है बॉडी. ओके, दिस इज बॉडी, this is body size. Body is basically whenever we write A, B, C, so this height it is body, this height it is body. Okay, and this height it is set size, width, whatever we used the term. Now back to the topic. Body is basically it is measured in a point. Okay, ये पॉइंट में मेज़र की जाती है. बेसिकली ये इसकी हाइट, टॉप से बॉटम तक का जो हाइट होती है वो हमारा मेजरमेंट होती है. और दैट्स ऑल. नेक्स्ट इज width is basically a set size. Okay, so it is measured like this, in this way. It determines the thickness of a term, of a character, of a word. बेसिकली m है, m की थिकनेस ज़्यादा होगी,
वही ए या आई की थिकनेस कम होगी। तो बॉडी में बी फिक्स, इट रिमेन फिक्स, बिकॉज यहाँ पे अगर हमने मैट लिखना है तो इट मे बी फिक्स, जनरली इट इज़ फिक्स, बट दिस एरिया ये फिक्स नहीं होता, ये वेरी करता है। मैट के लिए थोड़ा बड़ा होगा, एम के लिए बड़ा होगा, ए के लिए छोटा होगा, टी के लिए और भी छोटा होगा, या आई के लिए और भी छोटा होगा, राइट। तो ये इसके अलावा इसके साथ थोड़ा स्पेसिंग मटेरियल भी हम ऐड करते हैं, सो दैट इट इज़ ईजी टू रीड और इट गिव्स ए प्लेजेंट रीडिंग अपील। तो इसके साथ थोड़ा सा स्पेसिंग मटेरियल भी ऐड करते हैं जो डिस्टिंग्विश करता है वर्ड्स को, और उसमें इट बेसिकली इसकी मेजरमेंट तो हम पॉइंट में करते हैं, इसकी मेजरमेंट हम एक यूनिट, एक अलग से टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड यूनिट। ओके, फॉर एग्जांपल दिस एम को हम मेजर करने के लिए यहाँ पे हम इसके लिए हम एक यूनिट, एक इकाई यूज करते हैं, जो इस इकाई को हम यूनिट बोलते हैं। ओके, जनरली W हैज़ द वाइडेस्ट यूनिट, वाइडेस्ट सेट साइज, I इज द लीस्ट, ये सबसे छोटा सेट साइज अगर पूछा जाए तो हमारे पास I है। ओके, ये हमारे पास, हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमने एक बार पढ़ा भी होगा, मैट वाला एग्जांपल हमने पढ़ा था, MAT सॉरी स्मॉल में। तो मैट में हमने जैसे देखा था ये इट इज़ 34 यूनिट्स, ये पहले हमारा 18 में डिवीज़न है, फॉर एग्जांपल ये 18 में, देन अगला हमारा 10 में डिवीज़न है, देन अगला हमारा 6 में डिवीज़न है। तो ऐसे करके टोटल 34 हमारा 34 हो गए, 34 यूनिट्स में हमारे ये यूज़ हो रहे। और ये जो है वो बेसिकली एक एम स्क्वायर बॉडी होती है। अभी हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, सेट साइज और सेट साइज क्या होता है, आगे इसकी यूनिट आएगी। इसके अलावा हमारा अगला है हाइट, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी है वो हाइट होगी। पता है हाइट हमारी फिक्स होती थी, कितनी होती थी, ये हमने पढ़ा था बेसिकली से, ये हमारी इंच होगी, इतनी हमने यूनिट हमने पढ़ी थी। इट इज़ जनरली a constant for every press, but earlier it was not a constant. Earlier every press used their own size, right? That's why it creates a problem. Still 0.918 inch is used by England, USA, Australia, India, Canada, etc. These English country are use this type, whereas there is another type having a different height. This is a 0.128 of inch. This is used by Egypt, France, Germany, Spain, Turkey, Switzerland. Maximum you need to remember this name, Germany. Okay, Germany use D dot point system. That's why their point system is different. They are not using our point system, or we are not using their point system. Their point system is different. Their measuring system is different, and this is our topic. This is our main topic. Which system we are following? So we'll discuss on this. First, let's discuss about history. It's a story I'm discussing in very brief. Starting में first movable types was invented or printed in 1224 से बीच में कोरिया में हुआ था. Then till 1500 there was no improvement. इसके बाद 1700 तक कुछ improvement नहीं हुई थी. After that, initial type founder manufactured types in their own dimension
टू क्रिएट से गुड डील्स और प्रॉब्लम्स फॉर द प्रिंटर। इसका मीनिंग ये है कि स्टार्टिंग में क्या होता था, जब हमारा पॉइंट सिस्टम, इट्स लाइक मैं थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी हर किसी के पास एक स्टैंडर्ड यूनिट, मेजरिंग यूनिट है। अगर हमें कुछ मेजर करना है, किसी की हाइट मेजर करनी है, इफ़ आई आस्क टू यू व्हाट्स योर हाइट, देन यू वुड से माई हाइट इज़ 5 feet 2 inch और 75 सेंटीमीटर। देर इज अ सर्टेन यूनिट विच वी आर यूजिंग, और जो हमारी आपस में फिक्स है। इट्स नॉट लाइक इट्स चेंजिंग बाय द जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि ये हमारा एक पोजीशन से दिल्ली में अगर हमारी कोई सेंटीमीटर का कुछ और यूनिट है, और कल कोलकाता में हम जाते हैं तो वहाँ पे अलग यूनिट नहीं होती। दे आर फिक्स, दे आर कॉन्स्टेंट। सेंटीमीटर इज फिक्स, दैट्स मीन दिस साइज, फॉर एग्जाम्पल near to this is 1 inch. Okay, we know that this is 1 inch. So ये कहीं भी जाओगे तो हमारा ये फिक्स है। तो ये फिक्स अभी हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन के बाद। लेटर ऑन द व्हेन presses realize that we should at least standardize our measurement system, but earlier there was no standardization. earlier क्या होता था, हर प्रेसेस अपनी खुद की टाइप का साइज बनाता था, खुद का स्टाइल बनाता था, खुद का फॉर्मेट बनाता था। उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वो अपना खुद का बना रहा था। इसके साथ प्रॉब्लम ये आती थी कि सपोज हमने एक अपना खुद का टाइप बनाया जिसका सेट हाइट, जिसकी बॉडी हाइट या टाइप हाइट वो अलग है, सेट साइज अलग है, बॉडी इसकी अलग है, उसका सारा आपस में वेरिएशन अलग आ रहा है। तो जब हम क्लैंपिंग की बात करते थे, कंपोजिंग की बात करते थे, वो कंपोज नहीं होता था बिकॉज वेरिएशन इन साइज। सो हम क्या करते थे, तो एक ही प्रिंटर से या एक ही टाइप फाउंडर से हम बनाते थे। तो व्हाट वी आर सेइंग दैट इनिशियली टाइप फाउंडर मैन्युफैक्चर टाइप्स इन देयर ओन डायमेंशन। स्टार्टिंग में टाइप फाउंडर इज लाइक ये वो जो टाइप बनाते हैं, हर कोई अपना खुद का ओन डायमेंशन, खुद के डायमेंशन बनाता था, जिससे हमें प्रिंटर्स को प्रॉब्लम होती थी। स्लाइड वेरिएशन इन टू टाइप फाउंडर डायमेंशन दैट बिकॉज ऑफ स्लाइड दे आर नॉट मिक्स टुगेदर। यानी कि अगर दो अलग अलग टाइप हम साथ में नहीं रख सकते थे, बिकॉज वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। सपोज आज एक प्रिंटर से मैंने कोई डिज़ाइन, एक टाइप फाउंडर से मैंने कोई टाइप बनाया और कल मुझे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ा, तो मुझे उसी पे डिपेंड होना पड़ता था। इन केस जब वो जॉब डन हो जाती थी तो देन वो टाइप भी उसी टाइप फाउंडर्स के पास ही वापसी जाना पड़ता था, क्योंकि और किसी के लिए वो यूजलेस होता था, राइट। Therefore the printer had to develop solely on one type founder only and accept type even if they were not good। यानी कि टाइप चाहे कोई कितना भी खराब बना रहा हो या कितना भी सही बना रहा है, बट अगर जैसा एक प्रिंटर बना रहा है तो वो उसी के अकॉर्डिंग बनाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई डॉलर का साइन अच्छा नहीं बनाता हो लेकिन उसके पास ए के फॉन्ट बड़े अच्छे, हमने स्टार्टिंग में ए का उसका फॉलो करने लगे, देन पता चला कि उसके पास स्टाइलिश फॉन्ट अच्छे नहीं है, इटैलिक फॉन्ट अच्छे नहीं है, बट स्टिल वी बाउंड विद देम। ओके, उसके बाद क्या था, 19 के स्टार्ट हो जाता था। 1937 फ्रेंच टाइप डिजाइनर एंड प्रिंटर पैरी साइमन फोर्नियर मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट इन फ्रांस टू मैन्युफैक्चर टाइप इन मल्टीप्लाइज ऑफ पॉइंट्स। यानी कि स्टार्टिंग में 1737 में पैरी साइमन फोर्नियर्स करके एक पर्सन था जिन्होंने ये सब कुछ स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करी। उसके लिए उन्होंने एक सबसे बेस यूनिट बनाई। दैट बेस यूनिट इज पॉइंट। दैट बेस यूनिट व्हाट दे डू, कुछ भी टाइप मेजरमेंट होना था उसके लिए उसके मल्टीप्लिकेशन में ही हम, पॉइंट के मल्टीप्लिकेशन में हम करते थे। या कुछ नया टाइप बनाना है, फॉर एग्जांपल एक फॉन्ट है ये, एक फॉन्ट ये, देयर इज डिफरेंट। तो ये जो इनके बीच में डिफरेंस है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉइंट्स में डिफरेंट होता था। तो पहले इसको 6 भागों में सपोज भागा, तो अगर हमने इसे कह दिया 6 पॉइंट, तो ये इसको भी उतने ही डिस्टेंस में इन्होंने भाग स्टार्ट कर दिया था, तो मल्टीपल ऑफ उसी के हिसाब से, तो ये 8 पॉइंट। तो ऐसे इन्होंने एक पॉइंट सिस्टम बनाया। अभी हम दिखाएंगे इसके बारे में। ओके, सो अभी
ये हमारे उन्होंने ट्राई करा, अटेम्प्ट करा, फ्रांस में उन्होंने आपस में इसे क्लब करने की कोशिश करी। कुछ कंट्री में ये क्लब हो भी गया था बट ये अच्छे से क्लब नहीं हो पाया था, बट कुड गेन पॉपुलैरिटी ऑन ओनली फ्यू कंट्री, कुछ ही कंट्री तक ये पॉपुलैरिटी गेन कर पाया बट ज़्यादा नहीं कर पाया। देन आफ्टर फोर्नियर डाइड डेथ, फ्रांसिस एम्ब्रोस डीडॉट, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांसिस एम्ब्रोस डीडॉट नियर टू 1965, उन्होंने दैट मेड ए सर्टेन इम्प्रूवमेंट, उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट करी। दैट सिस्टम इज कॉल्ड डीडॉट सिस्टम। दे इवॉल्व ए पॉइंट सिस्टम, दे इन्वेंट ए पॉइंट सिस्टम, उन्होंने एक बेस यूनिट बनाई। दैट बेस यूनिट इज कॉल्ड पॉइंट सिस्टम। दोबारा से बता देता हूँ इन केस किसी को समझ नहीं आ रहा। उन्होंने क्या करा, ये फ्रांसिस फोर्नियर ने ही स्टार्ट करा था और वहाँ उन्होंने पॉइंट सिस्टम बता दिया था कि एक सबसे छोटी यूनिट इकाई हमें रखनी चाहिए जिसको हम कोई एक टर्म बोले, तो उन्होंने एक पॉइंट सिस्टम बनाया। देन उसको उन्होंने उस पॉइंट सिस्टम को इक्विवेलेंट करा इंच के साथ, बिकॉज उसको किसी के साथ तो कंपेयर करना पड़ेगा, तो हमने मीन्स डी डॉट ने उसको इंच के साथ इक्विवेलेंट कर दिया। तो हमारे पास एक बेस यूनिट आ गई, ठीक है, और दूसरा वो किसी दूसरी यूनिट जो पॉपुलर यूनिट है उसके साथ उसका रिलेशन भी बता दिया। ओके, दैट इज सो 12 यूनिट इज इक्वल टू 0.1776, it is basically 1.148 into 12 is equal to this one. So 1 point is equal to this one, 1 point is equal to this one, and 12 point is equal to this one, and 12 point is called Cicero. इसको दोबारा से बताता हूँ। इन्होंने एक पॉइंट बना दिया जो होता था 0.148 इंच, ओके। उसके बाद 12 पॉइंट बना दिया जो हो गया दिस इंटू 12 इक्वल टू 0.1776 इंच, राइट। उसके बाद इसको उन्होंने एक टर्म बोल दी, दे यूज टू से दिस एज ए सिसेरो, ओके, CICERO, सिसेरो, ये हमारी टर्म यूज होने लगी। बट दैट वाज इन नॉन इंग्लिश कंट्री, ओके, नॉन इंग्लिश कंट्री इज लाइक यूरोपियन कंट्री, okay. So initially it was quite acceptable and popular, they are getting good response initially, but there is slightly a problem, like initially अमेरिका एक कंट्री थी जो मोनोटाइप और लाइनोटाइप मशीन बनाती थी, ओके। हमारे पास जो मशीन है वो भी ऐसे अमेरिकन मेड मशीन है, कभी हम उसकी पिक्चर भी दिखाएंगे और या वीडियो दिखा देंगे। तो इनिशियली ये तो हमारे पास ठीक ठाक पुरानी है। इनिशियली जब टाइप की बात होती थी तो टाइप या कोई भी कंपोजिंग मशीन की बात होती थी, वो ज़्यादातर मशीन अमेरिका बनाती थी। ब्रिटिश ने अपना खुद का पॉइंट सिस्टम बनाने की कोशिश करी, खुद का सिस्टम बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो सिस्टम ज़्यादा टाइम तक चला नहीं। अमेरिका ने अपना खुद का सिस्टम बनाने की कोशिश करी, वो सिस्टम चला। क्यों? उसका रीज़न ये था बिकॉज अमेरिका के पास या मैक्सिमम कंट्री के पास जो मशीन आती थी वो मशीन ब्रॉट बाय दैट मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका। मैक्सिमम मशीन्स हमारी अमेरिका में मैन्युफैक्चर होती थी, बट देन दे सो दैट। और इसके अलावा एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मशीन मैन्युफैक्चर हो रही थी, प्लस आपका जो लेबर है वो भी ट्रेनिंग फ्रॉम अमेरिका से ट्रेनिंग उनको मिली थी। तो जो भी एक्सपर्ट थे वो सारे एक्सपर्ट भी हमारे अमेरिका से थे, ओके। तो हमारा कहीं ना कहीं ये रहा कि अमेरिका हमें लीड कर रहा था ब्रिटिश को, और वो ही हमें सब कुछ सप्लाई कर रहा था, चाहे मैन पावर हो गया या नहीं तो हमारा सब मशीन हो गया, जिसकी वजह से ब्रिटिश का जो खुद का सिस्टम था पॉइंट सिस्टम वो फेल हो गया, ओके। और उन्होंने जो अपना सिस्टम बनाया था वो ख़राब हो गया, क्योंकि उनके पास जो लेबर थी वो अमेरिकन पॉइंट सिस्टम को फॉलो करती थी, प्लस उनकी मशीन भी अमेरिकन पॉइंट सिस्टम को फॉलो करती थी। मैं जल्दी से वाइंड अप करता हूँ। उसके बाद ये हुआ, देन इसने ब्रिटिश ने जो पॉइंट सिस्टम बनाया था वो पॉइंट सिस्टम था 12 पॉइंट इज इक्वल टू 1 पाई का। यहाँ पे हमने क्या देखा था, डी डॉट में
12 पॉइंट इज इक्वल टू सिसेरो। ओके, बट यहाँ पे ब्रिटिश अमेरिकन पॉइंट सिस्टम में, बेसिकली एंग्लो अमेरिकन पॉइंट सिस्टम इट वाज अर्लियर, जो बाद में डेवलप हो गए ब्रिटिश अमेरिकन, बिकॉज दोनों ने आपस में फिर वाइंड अप, दोनों आपस में ये डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों मिलके सेम पॉइंट सिस्टम फॉलो करेंगे। तो उन्होंने पॉइंट सिस्टम को 12 पॉइंट को क्या कहा, पाइका बोला। ओके, तो यहाँ पे टर्म चेंज होगी, रेस्ट इट वाज ऑलमोस्ट सेम, दिस स्लाइटली डिफरेंट जो हम लेटर विल टेल यू। ब्रिटिश रूल देन, हाँ, British rule India before independence. Therefore, they brought all the machines and type from British. Even all the types and machines in India are also manufactured according to British American point system. इसका भी मीन्स ये हुआ कि ब्रिटिश इंडिया पे राज करता था, सो इंडिया में जो मशीन आती थी दैट ब्रिटिश की आती थी, जिसकी वजह से हमें भी ब्रिटिश के पॉइंट सिस्टम फॉलो करने पड़ते थे। और ब्रिटिश कहाँ से फॉलो करी थी, वो अमेरिका के पॉइंट सिस्टम फॉलो करती थी। तो अल्टीमेटली हमने भी अमेरिकन पॉइंट सिस्टम फॉलो किया, और हमारा अमेरिकन पॉइंट सिस्टम है जिसमें पाइका आता है। ओके, तो एंड सेकेंड थिंग, अर्लियर इंस्टेड ऑफ लाइक पहले क्या था, देयर वाज नो 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 8 पॉइंट। सपोज कहते आई इंस्ट्रक्ट यू, आई से कि you have to write a books with this point size. Okay, earlier, now we know that this is 9 point, 9 point size, हमें पता है अभी ये 9 point size है, 10 point size है, बट पहले there was no unit, no number। पहले हम क्या करते थे, earlier we used to follow by its name। For 5.5 we say we needs a gate point system, a gate point instead of saying 5.5। पहले क्या था, पहले हम उसको नाम से पुकारते थे हर साइज को, अब क्या है, हम उसको नंबर से पुकारते हैं। और बड़ा होगा तो उसको नेक्स्ट नंबर से बोलेंगे, उससे और बड़ा साइज होगा देन वी यूज़ अनदर टर्म। सॉरी, दोबारा से बताता हूँ, पहले क्या था, पहले हम उसको नाम से बुलाते थे हर पॉइंट का। छोटा सा बड़ा पॉइंट साइज था तो उसका अलग साइज था, उसका अलग नाम था, उससे बड़ा साइज था उससे अलग नाम था। जैसे ये हमने ये कुछ सैंपल दे रखे हैं। और उससे पहले हमारा जो था, उससे पहले सॉरी, और अब था, अब इसमें पॉइंट सिस्टम, हम पॉइंट सिस्टम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट एंड पॉइंट सिस्टम। अब ये पॉइंट और पॉइंट सिस्टम बेसिकली, लेट्स read this. Point is the smallest unit to measure type and all the printing and spacing material used in the printing industry. Remember this definition, this is very important. सबसे छोटी इकाई है मेजर करने के लिए, सबसे छोटी यूनिट है मेजर करने के लिए, क्या है, पॉइंट। सपोज हमें कुछ भी प्रिंटिंग रिलेटेड कोई भी काम है, उसे अगर हम मेजर करना है तो उसके लिए हम पॉइंट सिस्टम, पॉइंट से बात करेंगे। पाइका इज फॉर डिफरेंट। इनिशियली अगर हमें कोई पॉइंट, कोई टाइप्स के बारे में पूछेगा तो हमें उसे पॉइंट में बताना है, ना कि इंच और सेंटीमीटर में बताना है। अदर, इसके अलावा टाइप के अलावा अदर प्रिंटिंग एंड स्पेसिंग मटेरियल, अदर स्पेसिंग वुडन मटेरियल और अदर मटेरियल थे, वो भी हम पॉइंट्स में बताते हैं। ओके, वेट, हाँ जी, रिलेशन इज लाइक हमारा पॉइंट और इंच में कैसे हमारा इक्वेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1/72 ऑफ इंच, मीन्स 1 इंच इज इक्वल टू 72 पॉइंट। सो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 71/72 of inch. If we calculate this as an inch, so it is this 3837 inch, or we can say this 35 mm point system. Okay, and here it is 1 inch equal to point system, and 12 point is equal to 1 pica. We'll discuss about this later on.
एंड दिस वन ऑल्सो। 12 पॉइंट क्या हुआ, 1 पाई का हो गया। हमें सिर्फ इतना याद करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाइवा में पूछ सकते हैं और आपको टिप्स में याद होना चाहिए और क्वेश्चन में तो आ ही सकता है। सिंपल, 1 पॉइंट इक्वल टू 1/72 इंच एंड 12 पॉइंट इज इक्वल टू 1 पाई का। ओके, 6 पाई का इज इक्वल टू 1 इंच। All three are important, and they directly or indirectly, they directly ask, they can ask how much 1 inch is equal to how much point or pica or anything. So you have to remember all these in different way. Like किसी ने आपसे ऐसे पूछा 1 एम में कितने पाइका होते हैं, 1 पाइका में कितना होता है, और एम इज स्क्वायर बॉडी, स्क्वायर बॉडी, और इसके साथ एम पाई का, तो ये हम बेसिकली 1 पाई का ही हुआ। ओके, और इसके अलावा इसके बारे में और कुछ ये ही पूछेंगे, तो एक बार इसे अच्छे से याद करना। ये हमारे जो छोटे पॉइंट होते थे, वो जैसे 8 पॉइंट, 5 पॉइंट, ये हम टेक्स्ट के लिए यूज़ करते थे, टेक्स्ट फॉन्ट के लिए। जो हमारे बड़े पॉइंट होते थे वो उसे हम पाइका कहते थे। अभी हम पूछ रहे थे ना, पॉइंट इज फॉर टाइप, पाइका इज फॉर मेजर और डेप्थ। ओके, तो ये मेजर और डेप्थ क्या होता है? मेजर इज बेसिकली दिस लाइन इज अ मेजर एंड डेप्थ इज इक्वल टू दिस लाइन। इसे हम डेप्थ कहते हैं, इसे हम मेजर कहते हैं। डेप्थ और मेजर में क्या डिफरेंस होता है? डेप्थ हमारी किसी बुक में जो पेज का हेड से टेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा डेप्थ में काउंट होता है, और जो हमारा बैक से लेके फोरेस्ट तक का जो डिस्टेंस काउंट होता है वो हमारा मेजर में काउंट होता है। ओके, ये अभी हमारी बुक कैसी है, या हमारी जो वीडियो आ रही है ये हमारी लैंडस्केप में है। इसको लैंडस्केप को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारी वीडियो अब ऑब्लॉन्ग में है। ओके, एंड नेक्स्ट इज पाइका लाइन। हम पहले वो बता, उसके लिए पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने 12 पॉइंट 1 पाइका बोला था। आगे हम जो बड़े पाइका होते थे उसको हम लाइन से बोलते थे। 72 पॉइंट इक्वल टू 6 लाइन पाइका। तो वहाँ से हमारी हैबिट बन चुकी, तो बड़े पॉइंट को हम इक्विवेलेंट लाइन के साथ लेने हैं। ये भी हम कह सकते हैं 72 पॉइंट इक्वल टू 6 पाइका। ओके, और लाइन हम एडिक्टेड हो चुके हैं, जैसे एम पाइका बोलते हैं। बड़े फॉन्ट के लिए हम लाइन यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बड़े वर्ड के लिए, पोस्टर के लिए, वुड के लिए आपको हमने ये मैं बताना भूल गया कि टाइप जो होते हैं वो बेसिकली किससे बनते हैं, या तो मेटल अलॉय से बनते हैं या नहीं तो वुड से भी बनते हैं। जो बड़े बड़े टाइप होते थे वो हमारे वुड से बनते हैं। ओके, इसके अलावा जल्दी हम इसे वाइंड अप करते हैं, सो दैट बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 40 मिनट वीडियो एंड unit are used to measure the width of individual character as well as to space between the character of word। हमने क्या करा था, जब ये एक अल्फ़ाबेट है, ओके, ये और ये दो ही है, इसके अलावा हाइट, पेज हाइट वो हम अभी रीड नहीं कर सकते। तो इसको हम कहा था सेट साइज। इसको क्या कहा था हमने, इसको हम बॉडी कहा था, राइट। इसको पहले को हमने बॉडी कहा था, इसको सेट साइज, जिसे हम विड्थ भी कहते हैं। ओके, तो ये विड्थ जो है ये इस में, अगर मेरे पास फोटो हो,
इस हमने एक बार एक चार्ट पढ़ा था, ये हमारा 18 टाइम्स डिवाइड होता है, इसमें कम हो रहा है, हम इसमें थोड़ा कम हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 18 टाइम्स डिवाइड अगर हो रहा है तो बेसिकली एक ये जो पार्ट है दैट पार्ट इज कॉल्ड यूनिट। तो हमारा कितना हुआ, ये 18 यूनिट हो गया। और ये इसमें ये सबसे बड़ा फॉन्ट इसमें हम लिख सकते हैं एम जैसे। ओके, तो ये इक्वल होगा, ये स्क्वायर में होगा। ओके, तो ये हमारा सबसे बड़ा फॉन्ट इसमें आ गया। अभी इसी हाइट में, सपोज इसी हाइट में मैं दूसरा फॉन्ट लाऊं, लेकिन वो फॉन्ट की भी सेट तो सेम नहीं होती, बिकॉज हमने पढ़ा था कि फॉन्ट की सेट वेरिएबल होती है, जैसे MAT या MAI या कुछ और। तो जो T है उसकी सबसे छोटी होगी ऑब्वियसली, M की सबसे बड़ी होगी। तो ये सेट है और ये सेट वेरी करती रहती है, ये वेरी नहीं करती। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरली हमने जो पढ़ा था कि जैसे M है, M के लिए 18 हम यूज़ करते हैं, A के लिए 10 यूज़ करते हैं, T के लिए 6 यूज़ करते हैं। तो इससे हमारा क्या हुआ, ये एक 18 बार डिवाइड होगा, A जो है ये सिर्फ 10 बार डिवाइड होगा। ओके, और T इक्वल टू ये हमारा 6 बार डिवाइड होगा। तो ये ऐसे आ जाएगा, जबकि इसकी ये बॉडी साइज हमारा सेम होगा, जबकि सेट हमारा ये अकॉर्डिंग टू यूनिट डिवाइड होगा। और जितनी जो सबसे छोटी बॉक्स होगा वो हमारा उसे यूनिट कहेंगे। ओके, तो हम एक बार इसे रीड कर लेते हैं, देन कुछ मिस हुआ तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। एम, इट इज़ द स्क्वायर बॉडी ऑफ ए गिवन टाइप। एम क्या होता है, किसी भी बॉक्स का जो इसकी ये स्क्वायर बॉडी होती है, इसका ये वाला लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों बराबर होती है, तो इसको हम स्क्वायर बॉडी कहते हैं, जिसको हम एम कहते हैं। द यूनिट आर ऑब्टेन बाय सब डिवाइडिंग एम इंटू वर्टिकल सेगमेंट ऑफ इक्वल साइज। इसको हम यूनिट को कैसे प्राप्त करेंगे, उसको हमने 18 से या इक्वली सब डिवाइड कर दिया, जो हमने इसमें बोला था। सेट विड्थ, ईच कैरेक्टर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ यूनिट डिपेंडिंग अपॉन दी इट्स विड्थ, डायमेंशन इज सेट विड्थ। इसको हम सेट विड्थ कहेंगे, जो हमने अभी पढ़ा था, और ये इक्वली डिवाइड होता है। इसमें हमने M आ गया, A आ गया, T आ गया, ठीक है। ये एक बार मैं इसकी फोटोग्राफ भी आपको देता हूँ, जल्दी एक बार मैं वाइंड अप करता हूँ हल्का सा, सो दैट कल के लिए हम डिस्कस कर लेंगे। ये थोड़ा सा इजी सा है, तो इजीली हम डिस्कस कर लेंगे। स्टैंडर्डाइज द बॉडी टाइप्स एंड स्पेसिंग मटेरियल। पॉइंट सिस्टम के फ़ायदे क्या क्या है। अब पॉइंट सिस्टम बना तो उसका कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए, तभी तो हम पॉइंट सिस्टम यूज़ करें, क्यों, या नहीं तो हम क्यों यूज़ ना करें। पहला फ़ायदा, स्टैंडर्डाइज करेगा, इट्स मीन्स दैट एवरी प्रिंटर्स यूज द सेम टाइप। ओके, देयर इज नो मोनोपोली और नो डिफरेंट टाइप साइट, ईदर पॉइंट इन इट इज़ इन द पॉइंट और इन द मल्टीपल ऑफ पॉइंट। जो हमारा बेस यूनिट है दैट इज़ फिक्स, दैट इज़ पॉइंट। So whatever the unit it is, it must be in the multiplication of point. Third is justification with accuracy and other type setting. Justification क्या होता है, जब भी हम टाइप करते हैं कोई भी बॉक्स में कोई भी मैटर लिखते हैं, सपोज मैंने ऐसे एक मैटर लिखा, जैसे हमने इंग्लिश की एप्लीकेशन लिखी, जब हम इंग्लिश की एप्लीकेशन लिखते हैं तो यहाँ से अलाइनमेंट करते हैं। ओके, तो कभी का हम यहाँ से भी अलाइनमेंट करते हैं, सो दैट एक सूदिंग सा इफेक्ट दिखे, सूदिंग सी रीडिंग्स हो जाए, तो जो एक्स्ट्रा होता है वो नेक्स्ट लाइन में चले जाता है। तो दैट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन हमने MS वर्ड में हमने देखा था, जस्टिफिकेशन के हमारे पास ऑप्शन होते हैं और वो हम जस्टिफिकेशन वहाँ से करते हैं। ओके, हमने जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल की, तो हम जस्टिफाइड एप्लीकेशन लिखते हैं, जो थोड़ा सूदिंग इफेक्ट देता है। टाइप, स्पेसिंग, मटेरियल of different size can be aligned in the same line. अब सपोज मुझे लिखना है MA मटेरियल, जैसे मैंने पहला वर्ड है वो मैंने बहुत बड़ा लिख दिया, ओके, और दूसरा वर्ड मैंने छोटे छोटे लिखे। तो अगर हमने टाइप में दो अलग अलग टाइप के पुराने तरीके में, पुराने मेथड में अगर हमने दो अलग अलग टाइप यूज़ करें जिसका अलग अलग साइज़ हो, तो ये थोड़ा सा बैलेंस नहीं बनता था, बिकॉज सबका टाइप हाइट अलग है, सबका टाइप का विड्थ अलग है, हाइट अलग है, सेट साइज अलग है, सेट तो ऑब्वियसली डिफरेंट होना ही है, बॉडी भी अलग है, तो ये इशू आ जाता था, एटलीस्ट स्पेशली हाइट के इशू में। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, इसलिए हमने क्या करा, ये पॉइंट सिस्टम ईजाद करा, जिससे क्या हुआ, अब ये इसी रेशो में
अब जब बड़ा होगा, ये m बड़ा है तो उसके ही रेशो में ये बाकी अक्षर छोटे हैं। ओके, तो हम डिफरेंट कोई भी है वो अलाइन कर देते हैं, नीचे से अलाइन कर दिया या ऊपर से अलाइन कर दिया। स्क्वाड कैन बी यूज्ड एज ए स्पेसिंग मटेरियल। स्क्वाड बेसिकली एक स्पेसिंग मटेरियल होता है। क्वाड, सॉरी आई एम सॉरी, इट वाज स्मॉल क्वाड्स। क्वाड्स हमने जब हमने लेटर पैस में देखा था, वहाँ हमने क्वाड्स लगाए थे, छोटे छोटे ब्लॉक्स लगाए थे, एम क्वाड्स, एम वाले जो। ठीक है, एबॉलिश अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप बॉडीज बाय वेरियस कंफ्यूजिंग नेम। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 5.5 को हम एगेट बोलते हैं, 12 को पाइका बोलते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे नेम थे जो ओल्ड नेम थे, वो हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास जो एक पर्टिकुलर साइज़ है उसको हमने पॉइंट नंबर से बोलना है, नंबर से हम बता सकते हैं। हमने सीधा ये बोल देना कि 5.5 इंच का जो फ़ॉन्ट है वो हमारा न्यूज़पेपर में प्रिंट होना है। पहले हमने बोलना पड़ता था कि एगेट को प्रिंट करो, अब ऐसा कुछ नहीं है। ईजी टू एस्टिमेट एंड कॉपी फिटिंग। कॉपी फिटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पेजेस हम यूज़ करेंगे फॉर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कह तो दिया कि मेरे को ये सारा कंटेंट टाइप करना है। ये कंटेंट तो टाइप करने के लिए मैंने आपको, सॉरी, ये कंटेंट टाइप करके प्रिंट करके देना है, बुक बनानी है। तो आप कैलकुलेट क्या करोगे? कैलकुलेट ये करोगे कि नंबर ऑफ पेजेस कितने लगेंगे। तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं कॉपी फिटिंग का फॉर्मूला। ओके, जिसमें हमने अपने सारे टाइप को फिट कर दिया और उसके बाद कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना पेज है। इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में कभी। और हमें एक स्टैंडर्ड टाइप फ़ॉन्ट मिल गया। अगर स्टैंडर्ड टाइप फ़ॉन्ट मिल गया तो उससे हमें क्या मिला? हमें ये बेनिफिट हुआ कि हमारा जो कंटेंट है वो एक फ्लो में है, ऐसा नहीं है वेरिएशन आ रहा है, जिसकी वजह से एस्टिमेशन और एक्यूरेट हो गया। अगर हमने एक पेज दूसरे फ़ॉन्ट से टाइप करा, फिर अगला पेज हम कहीं और प्रिंट करा रहे हैं, जो अगला सेक्शन कहीं और प्रिंट करा रहे हैं, वो किसी और फ़ॉन्ट से टाइप कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर अगर वेरिएशन आ गई तो दिक्कत हो जाती थी। तो रीडेबिलिटी भी अच्छी होती है, एक और पॉइंट है कि हमारी रीडेबिलिटी भी बन जाती है। ओके, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो अभी एक छोटा सा डिस्कस कर ही लेते हैं बिकॉज इट इज़ वीडियो। तो इन केस यू आर टायर्ड देन यू कैन पोज इट। ओके, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग टू राइट ऑल दिस मैटर इन योर कॉपी and I will give you a feedback, so you have to fill that feedback. So ऐसा कुछ भी मैं पूछ सकता हूँ इनमें से, so be ready. As I said, there was a point pica system by British America. Okay, there was another point system Cicero by Germany or whatever country. तो ये अगला पॉइंट सिस्टम था। इस पॉइंट सिस्टम में ये ज़्यादा पुराना था, कन्वेंशनल था, तो पॉपुलैरिटी इसकी ऑब्वियसली थी, अच्छी खासी थी। कहाँ का फेमस था? द सिस्टम यूज इन सिंस 1879। ये 1879 से एक ऑफिशियली यूज़ होने लगे, ऑल्दो इट वाज डेवलपिंग सिंस 1737। कहाँ यूज़ होता है? यूएसए में यूज़ होता है, इंग्लैंड में यूज़ होता था, सॉरी एक्सेप्ट यूएसए, इंग्लैंड और कॉमनवेल्थ नेशन। ओके, और इसके बाद इसकी टाइप पेज की हाइट मीन्स पेज हाइट इज बेसिकली पेपर इज बेसिकली 0.918 इंच फॉर ब्रिटिश अमेरिका। और इसके में कितनी थी? इसमें थी 0.928 इंच। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 23.566 mm होगा। आपके पास अभी कैलकुलेटर है तो एक बार इसे कैलकुलेट करके देख लेना। ओके, इसके अलावा इसमें क्या है? अगला 6 पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे नोमेनक्लेचर अलग है। नोमेनक्लेचर मीन्स यहाँ पे नेम अलग है। 6 पॉइंट इज इक्वल टू 1 लाइन ऑफ पेरिस फुट, मीन्स यहाँ पे 6.1 फीट है और 12 पॉइंट और ये 1 लाइन ऑफ पेरिस फुट, सॉरी वही मैं सोचूं इसमें गलती क्या है। 1 लाइन है। ओके, एक लाइन जो आपकी वो बेसिकली जैसे वहाँ पे हमने कितने 12 लाइन का देखा था शायद से, तो एक लाइन हमारी इन फुट वो 6 पॉइंट के बराबर है। तो ये इतनी ज़रूरत नहीं है याद करने के लिए। इसमें क्या है? 12 पॉइंट इक्वल टू 1 सिसेरो। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे 1 पाइका था। ओके,
और 6 सिसेरो इक्वल टू, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 1 इंच, ठीक है। और बट ये वाला जो इंच है और ये पेरिस का फुट है, पेरिस फुट, ओके। पेरिस का जो फीट है, जो मेजरिंग फुट है वो अलग है और ये हमारा थोड़ा सा अलग है, तो वो चीज़ ये फॉलो करते हैं, ओके। ये अगेन सेम है, सिसेरो 1 पेरिस फुट, ये सेम चीज़ होगी, इतना काम की नहीं, इसमें हमारा ये काम का और ये 2 काम का, ये डी डॉट हमारा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसमें एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली बात, कि दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। अब जब पेपर हाइट चेंज हो रही है, सब कुछ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम, थोड़ा सा हाइयर साइड रख रहे हैं, एग्जैक्टली कुछ ना कुछ तो दोनों में रिलेशन हुआ। तो इसमें क्या होता है, 4.3 पाइका इज इक्वल टू 4 डी डॉट, यानी कि इतने पाइका बराबर होते हैं 4 डी डॉट के, ओके। तो अब 5.4 पाइका इक्वल टू 5 डी डॉट, ये हमारा ये रिलेशन होता है, ओके। बोथ डी डॉट एंड पॉइंट सिस्टम आर बेस्ड ऑन पॉइंट सिस्टम, द ओनली डिफरेंस इज डी डॉट पॉइंट सिस्टम इज स्लाइटली बिगर देन अमेरिकन पॉइंट सिस्टम, यानी कि डी डॉट पॉइंट सिस्टम थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अमेरिकन पॉइंट सिस्टम, ओके। दिस इज आवर टुडे क्लासेस एंड अभी तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। समराइज में हमने क्या पढ़ा था, समराइज में हम एक बार जल्दी फटाफट देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट होता है या एक टाइप होता है, टाइप बेसिकली क्या करता है, टाइप का काम कंपोजिंग होता है, फिर उसके बाद प्रिंट करता है, प्रिंट के लिए उसके ऊपर जो इमेज एरिया होता है उस पर हमारा इंक अप्लाई होती है, देन इट इज ट्रांसफर्ड ऑन टू द पेपर सबस्ट्रेट। देयर आर 3 बेसिक पार्ट्स, इट इज ऑलमोस्ट 17 or 18 बट बेसिक आर 3, दैट इज सेट साइज, बॉडी साइज एंड थर्ड इज हाइट, पेपर हाइट, पेज हाइट। एंड इसकी हिस्ट्री बताई थी, हिस्ट्री में इनिशियली वाज डेवलप्ड बाय साइमन फोर्नियर, ओके। उसके बाद इसका एम्ब्रोस डी डॉट ने उसको और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करा और पहला जो डी डॉट आया था दैट वाज बेस्ड ऑन सिसेरो। आफ्टर दैट अमेरिका इन्वेंट देयर ओन पॉइंट सिस्टम, दैट इट इज यूज्ड टू से अमेरिकन पॉइंट सिस्टम और एंग्लो अमेरिकन पॉइंट सिस्टम, दैट देन फॉलोड बाय ब्रिटिश एंड इंडिया सिस्टम। एंड इसमें हमने क्या करा था, वहाँ पे हम सिसेरो यूज़ करते थे, यहाँ पे हम पाइका यूज़ करने लगे, ओके। इसके लिए पहले इन्होंने पॉइंट नहीं होते थे तो पॉइंट के बदले उनका नाम यूज़ करते थे, वो हमारा नाम ये रहा। उसके बाद ये आपस में पॉइंट और इंच के बीच में क्या रिलेशन है वो हमने दे रखा है, ओके। उसके बाद ये थोड़ा सा उसका रोल है, सेट के बारे में बताया। सेट क्या होता है, एक टाइप में जो एक पॉइंट होता है नीचे के साइड को उसे हम सेट कहते हैं। दो टाइप के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो हमारा सेट होता है, उससे हमारी रीडेबिलिटी, लेजिबिलिटी अच्छे से डिफाइन हो सकती है, बिकॉज जितना कंडेंस होगा रीडेबिलिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, ओके। इसके बीच में हम स्पेसिंग भी डाल सकते हैं और जितना कंडेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यूनिट भी डिफर करती है। इसके लिए इसको मेजर करने के लिए हमने यूनिट सिस्टम बनाया था। ये हमारे कुछ इसके एडवांटेजेस थे। ये हमारा डी डॉट सिस्टम है। डी डॉट सिस्टम जैसे हमने पॉइंट सिस्टम का इक्वेशन होती थी वैसे हमने डी डॉट की इक्वेशन बनाई थी। इसके बाद ये पॉइंट और डी डॉट के बीच में रिलेशन है, ओके। एंड थैंक्स इसके लिए, आज के लिए। और हम अगली क्लास के लिए भी रेडी होंगे। थोड़ा बहुत डाउट्स होंगे वो प्लीज़ ऐसे एक बार फॉरवर्ड कर देना। और ये वीडियो ये अभी यूट्यूब में तो चलो अपलोड कर देता हूँ। एंड दैट्स ऑल होपफुली। और एक बार डिस्कस करके बता देना किस दिन यू आर रेडी एट व्हाट टाइम, सो दैट एटलीस्ट आई कैन सी योर फेस। मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है सो दैट कुछ हर साल होते हैं हमारे बच्चे, कुछ उत्पादी भी होते हैं, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होते हैं। एटलीस्ट आई शुड नो कि हाउ माई बेस्ट स्टूडेंट लुक्स। मैक्सिमम स्टूडेंट आर अच्छे ही होते, हाँ, तो मुझे उनके बारे में तो पता चले। बेकार स्टूडेंट वो तो चलो चलते हैं, ओके। और नाम भी तो काटने होते हैं। तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर में नाम कटा था, नहीं कटा, बच के तो, लेकिन अब तो काटने ही है, बिकॉज कहीं ना कहीं नहीं तो आगे दुखी करते हैं। तो नाम काटने के लिए भी तो हमें फेस याद होनी चाहिए, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।